Today, as we come here this afternoon, I would like to speak on the topic of taking a step of risk. और आज जैसे कि हम इस सभा में आए, मेरा जो शीर्ष है वो है कि रिस्क में एक कदम को लेना। Many of us we want to live a very comfortable life, हम में से बहुत से जन हैं जो हम आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं and we do not want to take risk in life. और हम अपने जीवन में किसी भी बात का हम रिस्क नहीं लेना चाहते। But no matter whatever situation it is, without taking risks, you will never achieve success. लेकिन फर्क नहीं पड़ता आप किस स्थिति में, लेकिन बिना रिस्क लिए आप कभी भी कामयाबी को नहीं पा पाते। Whether it is in the area of your spiritual growth, चाहे वो आपके आध्यात्मिक उसमें हो, जीवन में हो, maybe in your career, या फिर आपके करियर में हो, maybe in your business, या फिर आपके कारोबार में हो। all areas of life, we need to take a step of risk. और जीवन के हर एक क्षेत्र में हम एक रिस्क का हम कदम लेते हैं। And faith teaches us to take the first step without knowing what the second step holds for us. और जो विश्वास है वो हमें ये बताता है कि वो पहला कदम लेना बिना जाने कि दूसरा कदम क्या होगा। Taking risk also would mean letting go of something that you hold so tightly into your life. और रिस्क का मतलब ये भी है कि किसी चीज को जाने देना जिसको हमने जीवन में बहुत ही मजबूती से थामे हुए हैं। It may be letting go of your friends. हो सकता है शायद वो आपका दोस्तों का जाना हो, It may be letting go of the ideology that you know. या फिर वो उस ज्ञान का जो आपके पास है, Letting go of things that you have learned so far. या फिर वो सब जो ज्ञान और बुद्धि जो आपने अभी तक सीखा है। And when you begin to let go of these things, then only you are able to move ahead in life. और जब आप इन सब बातों को जाने देते हैं तभी आप इस योग्य होते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें। It will also mean that you will live a lonely life for a period of time. और ये भी हो सकता है शायद कि आप कुछ समय तक आप अकेला ही जिए, Because when you begin to take a step of faith, many of your friends will not journey with you. क्योंकि जब आप कभी भी विश्वास में एक कदम लेंगे तो आपके जो बहुत से दोस्त हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, Your neighbors may not be with you. आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं होंगे। Maybe you might go through a period of loneliness through a very brief season. हो सकता है शायद आप वो जो अकेलापन वाला जीवन है वो कुछ समय तक आप जिए। But you see, when you begin to decide to walk with Jesus, you will be able to live an adventurous and daring life. लेकिन जब आप ये फैसला लेते हैं कि आप यीशु के लिए जिएंगे तो वो आपको सिखा देता है और मदद करता है कि आप एक एडवेंचरस लाइफ जिए। And if you are that somebody who wants to not live a boring life, but you want to live an adventurous and daring life, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो आप बोरिंग वाला जीवन नहीं जीना चाहते, एक एडवेंचरस वाला जीवन जीना चाहते हैं, then you have to learn to be led under the leadership of the Holy Spirit. तो जरूरी है तुम्हें सीखना होगा कि तुम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर, Because the Holy Spirit would lead you into places that sometimes you may not feel comfortable. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो बहुत सी बार आपको कभी कभी ऐसे स्थानों में अगुवाई करेगा जहां पर आपको आराम महसूस ना हो। Maybe He will also take you to places that will bring you a lot of fear. हो सकता है शायद वो आपको ऐसे स्थाने में भी आपको ले चले जहां पर वो आपको बहुत सारा डर आए। And all of this began to happen because the Holy Spirit is very creative. और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो बहुत क्रिएटिव है। But even as you begin to take a step of risk, take a step of faith to grow beyond what you are, लेकिन जब कभी भी आप एक कदम लेते हैं रिस्क का और ये फैसला लेते हैं कि आप जहां पर भी आप उससे आगे चलेंगे, the Satan does not want you to become what God wants you to become. तो जो शैतान है वो कभी नहीं चाहता कि आप वो बने जो खुदा चाहता है कि आप बने। And so Satan began to attack you in so many ways. तो जो शैतान है आपको बहुत से तरीकों से आप पर हमला करेगा। And one of the ways जो Satan attack you is on your identity. और एक जो तरीका है जो शैतान आप पर हमला करेगा वो है आपकी पहचान। It's to make you feel doubtful and negative about yourself. वो आपके ही लिए, अपने आप के लिए आपको नकारात्मक और बहुत शंका में डाल देगा। And one of the biggest problem of us is that we don't really like ourselves. और पहली समस्या ये है हम सभी के साथ कि हम अपने आप को ही पसंद नहीं करते। Sometimes we hate ourselves. कभी कभी हम अपने आप को ही हम नफरत करते हैं। We don't love ourselves. हम अपने आप से प्रेम नहीं रखते, We don't like ourselves. हम अपने आप को पसंद नहीं करते। And because we don't like ourselves, we tend
to also not like others. और क्योंकि हम अपने आप को पसंद नहीं करते, इसीलिए हम ऐसे भी हो जाते हैं कि हम दूसरों को भी पसंद नहीं करते। When you do not first learn to love yourself, you cannot give what you do not have. और जब आप पहले ये नहीं सीखते कि आप अपने आप से प्रेम रखें, तो आप कभी भी दूसरों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। If you love yourself as a creation of God, अगर आप अपने आप को उस खुदा की रचना के रूप में प्रेम करते हैं, you think about a healthy heart, आप सोचेंगे एक स्वस्थ मन के बारे में, a healthy lifestyle, एक स्वस्थ चाल चलन जीवन के बारे में, what goes inside your body. जो आपके शरीर के अंदर जाता है। And if your heart and your mind and your soul is filled with all of the positivity that comes from the Word of God, अगर आपका दिमाग, आपका मन और जो आपका प्राण है वो सब उस सकारात्मक चीजों से भरा हुआ है जो खुदा से आता है, then you will also learn to love others. फिर आप ये भी सीखते हैं कि आप दूसरों से भी प्रेम You रखें। also learn to appreciate the other person. फिर आप ये सीखते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की भी प्रशंसा करें। You'll be less judgmental. आप दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। But sometimes if you are one of those person where you always see the negativity in others, कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जहाँ पे आप दूसरों में हमेशा नकारात्मक चीजों you don't learn to करते हैं। appreciate the other person. आप नहीं सीख पाते किसी दूसरे को प्रशंसा कर। You don't like others. आप दूसरे को पसंद नहीं करते। You don't love others. आप दूसरों से प्रेम नहीं रखते। Maybe there's a possibility that it comes from the source of you not loving and liking yourselves. और हो सकता है शायद ये भी संभावना हो कि ये उसी साधन से आया हो कि आप अपने आप को या किसी को प्रेम ना करते हो। And it is important to know that who you are in Christ Jesus. और ये बहुत ही जरूरी है जानना कि आप मसीह में कौन है। Now, there were two times in the Bible, in the book of Luke chapter 4, when the devil attacked Jesus on his identity. और वचन में 2 बार जहां पर शैतान ने, लूका की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि उसने यीशु की पहचान के ऊपर उसने हमला करा। In the book of Luke chapter 4 verse 3, और लूका की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 3 में the devil tried to plant the word of doubt in the heart of Jesus. और जो शैतान है वो यहाँ पर एक वचन, जो झूठ का वचन है, वो बोने की कोशिश करता है यीशु के मन। And it says, the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become a bread. तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। He was the Son of God. वो खुदा का बेटा था। But it was all been said so that Jesus could be confused. लेकिन ये सिर्फ इसीलिए कहा गया कि जो यीशु है वो शंका में आए। Then again in the book of Luke chapter 4 verse 9, और फिर से लूका की पुस्तक उसका अध्याय 4 के it says, if you're the Son of God, he said, then throw yourself down from here. फिर वो कहता है कि यदि अगर तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। He was the Son of God. वो खुदा का बेटा था। But these words were being said so that a seed of mistrust, a seed of doubt would start to sprout in his life. लेकिन ये इस शब्द को, इस नकारात्मक को, इस बीज को बार बार इसलिए दोहराया गया ताकि ये जो बीज है ये उनके जीवन में जाके बोया जाए और वो फले। Maybe you are going through a season of life when there are doubts being planted into your heart right now. हो सकता है शायद आप अपने जीवन के ऐसे समय में गुजर रहे हो, ऐसा समय रहा हो जब आपके मन में शंकाओं के वचन बोए गए हों। If you're a child of God, अगर आप खुदा के बच्चे हो, why are you having so many problems? क्यों आपके पास इतनी समस्या है? If you are a child of God, अगर आप खुदा के जन हैं, why is God not answering your prayers? क्यों खुदा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे? If you are a child of God, अगर आप खुदा के बच्चे, why you are going through so many problems and challenges? क्यों आप इतनी सारी समस्या और चुनौतियों से गुजर रहे हो? And all of this negativity prevents you from going to the Father. और ये सारी जो नकारात्मक चीजें हैं ये आपको रोकती है उस पिता के पास आने से। When trials and trouble comes into our life, we are supposed to run to the Father. जब चुनौतियां और समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो ऐसा होना चाहिए कि हम पिता की ओर दौड़े, Because He's a Father. क्योंकि वो पिता है। But the devil does not want you to go to the Father. लेकिन जो शैतान है वो नहीं चाहता कि हम पिता के पास And therefore there is a
seed of doubt planted in your heart that will prevent you to run to the Father. तो इसीलिए वो जो शंका का जो बीज है वो आपके मन में बो दिया जाता है ताकि आप पिता की ओर ना जाएं। In the book of 2 Samuel chapter 9, दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका there's a beautiful story. यहाँ पर एक खूबसूरत कहानी है। David becomes the king. जब दाऊद है वो राजा बनता है And after David becomes the king, he began to say, is there anybody from the family of Saul that I can show mercy? और यहाँ पर वो एक कहानी में ये है कि जब राजा दाऊद जब राजा बनता है तो वो कहता है कि शाऊल के घराने में से क्या कोई जन ऐसा है मैं जिस पर दया दिखाऊं। As they began to seek and he asked his officials to search, they found out that there was one, Saul's grandson. और जब वो उसने पूरे उस भंडार में उसने अदालत में वहां पर कहा तो वो देखा पाया गया कि जो शाऊल का जो परपोता था वो था It was Jonathan's son. वो था जोनाथन का बेटा And his name was Mephibosheth. और उसका जो नाम था वो था मेहबूशेत। He was crippled वो लंगड़ा था and one leg was shorter than the other. और उसका जो एक पैर था दूसरे पैर से छोटा था And he was hiding in one of the forests. और वो उस जंगलों में छुपा हुआ था And he was afraid that maybe David would come after him and would kill him. और वो डरा हुआ था कि जो दाऊद है वो शायद उसके पास ना आए और उसको मार ना दे। When they found out, they began to send soldiers to get hold of Mephibosheth. और जब उनको वो मिला तो उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि वो मेहबूशेत को वो वहां से ले आओ। When he was brought before the king David, जब उसको उस राजा दाऊद के पास सामने लाई हुआ afraid, वो डरा हुआ था, he was trembling. वो कांप रहा था। He was sitting on a table to have food with David. वो वहां पर उस मेज में बैठा हुआ था कि वो राजा दाऊद के साथ भोजन करे। And as he came before David और जब वो राजा दाऊद के सामने आए to tell to David, वो उस दाऊद से कहने लगा what good have I got on my, what good am I before you? कि मैं आपके सामने मैं किस प्रकार से भला हूँ। I am a useless person. मैं एक व्यर्थ व्यक्ति हूँ। I'm a handicapped person. मैं एक विकलांग Use to you. मैं आपके किसी भी काम का नहीं हूँ। What good can I do for you? मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। And that is the attitude of so many of us before the Heavenly Father. और ये सारा ऐसा ही स्वभाव होता है हम सभी का उस स्वर्गीय पिता के It's not about so much of negativity about ourselves. हम अपने आप के ही बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सोचते। Father wants to show His love upon you. जो पिता है वो हमारे ऊपर अपने प्रेम को दिखाना चाहता But है, the thoughts and the negativity prevents you from going before the Father. लेकिन वो जो सोच विचार और नकारात्मक चीजें हैं वो आपको रोकती है कि आप पिता के सामने It prevents you to move forward. वो आपको रोकती है कि आप आगे जाए। It prevents you to take risk in life. वो आपको रोकती है कि आप जीवन में कोई रिस्क लें। Risks of spiritual walk with Him. रिस्क एक ऐसा कि आप उसके साथ आध्यात्मिक या Reach behind things in the past. कि अतीत की चीजों को पीछे छोड़ दें, Holding on to the past. अतीत को पकड़े रखना। You cannot move to the future other than unless you let go of the past. आप कभी भी अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपने अतीत को पकड़े हुए हैं तो। Or maybe you have to let go of your friends. और ये सकता है शायद आपको अपने दोस्तों को Maybe you have to let go of your family members. या फिर अपने परिवार को छोड़ना पड़े। Maybe you have to let go of a kind of a job that is stressful and that is not allowing you to develop relationship with Jesus. या फिर हो सकता है ऐसी नौकरी को छोड़ना जो जिसमें बहुत मानसिक तनाव है और जो आपको रोक रही है कि आप उस पिता के साथ रिश्ते में जाएं। Some of you are afraid of losing your friends. आप में से कुछ लोग हैं जो डरते हैं अपने दोस्तों को खोने से। Though you know they are not good in the character. हालांकि आप ये जानते हैं कि वे चरित्र में सही नहीं, They are not man and woman of integrity. वो उस ईमान में रहने वाले जन और जननी में ही They are not people of truth. वो सत्य में रहने वाले जन। But if you let go of them, you begin to fear that you will be very lonely. लेकिन आप डरते हैं कि जब आप उन्हें जाने देंगे तो आप अकेले हो जाएंगे। And yes, it is true. Because you will go through a season of loneliness. हाँ, ये सच है क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आप अकेलेपन में आपको जाना होता है। Because the destination that God wants to take you to is not a destination that your friends will travel with you. क्योंकि जिस लक्ष्य में खुदा आपको ले जाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, वो लक्ष्य नहीं है जो जिसमें आपके दोस्त आपके साथ चल। Do you know when Abraham left his place? क्या आप जानते हैं कि अब्राहम ने अपनी जगह को कब छोड़ा था? And he was asked to go all by himself to the place where God wants him to go. और खुदा उससे
चाहता था कि वो उस स्थान में खुद ही जाए जहाँ पर खुदा उसको ले जाना चाह रहा है। But there was something that I observed was that he somehow disobeyed and he took his nephew Lot with him. और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से उन्होंने वहाँ पर उसकी आज्ञा को ना माना और उसने अपने भतीजे जो लूत है उसको संग ले He लिया। was not supposed to take him. उसको संग नहीं ले जाना He was चाहिए not supposed to journey together with Abraham in the destiny God had for him. और उसको उस यात्रा में संग नहीं ले जाना चाहिए था जो अब्राहम के लिए था। Do you know because of Lot, so many trouble came upon Abraham? क्या आप जानते हैं लूत की वजह से बहुत सी समस्या उसके ऊपर आई। They even came to a point when they had to depart because their people were quarreling among themselves. जो दाऊद है वो उस समय में आया जहाँ पर उसको अलग होना था क्योंकि जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे थे। When you do not want to trouble the destiny that God has for you, जब आप उस लक्ष्य में उस यात्रा में नहीं चलते जो खुदा का आपके लिए है, then you will find yourself in many troubles, in many problems, insurmountable problems coming upon your life. फिर आप देखते हैं आपके जीवन के ऊपर बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां आपके ऊपर आ रही But होती। what I want to encourage you this afternoon is to tell you to be bold as you go before the Heavenly Father. मैं आज आपको क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हिम्मत और हियाव बांधे जब आप उस खुदा के सिंहासन के आगे जाते हैं तो। Now, in order to support what I say, I take you to the book of Hebrews chapter 4 verse 16. और जो मैंने कहा उसके रेफरेंस के लिए मैं आपको इस वचन में ले जाना चाहूंगा, वचन में In the Amplified Version, और उसके एम्पलीफाइड वर्जन में it says, therefore, let us with privilege approach the throne of grace, that is the throne of God's gracious favor, with confidence, without fear, so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help us in the time of need, an appropriate blessing coming just at the right moment. इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। How many of you are looking for help from the Heavenly Father? हम में से कितने जन हैं जो उस स्वर्गीय पिता से हम मदद की राह देख रहे हैं? What is preventing you from going to the Father? ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है उस पिता के पास जाने को? What is preventing you to trust in the Lord? ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है कि आप उस प्रभु पर भरोसा रखें? And this afternoon, the Father is encouraging you and saying that we can go boldly to the throne of the grace. और आज की दोपहर जो पिता है वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है, कह रहा है कि हम उस खुदा के सिंहासन के आगे हम हियाव बांध कर हम जा सकते हैं। Not only just sometimes. सिर्फ जब ही नहीं, कभी कभी के लिए। Sometimes we pray, Lord, just help me one time. कभी कभी हम कहते हैं कि खुदा सिर्फ एक समय के लिए हमारी मदद कर। But God wants us to realize and know that we need His help all the time. लेकिन खुदा चाहता है कि हम ये जाने कि हमें उसकी जरूरत जीवन के हर समय चाहिए In every situation. और हर स्थिति में। And if you have to live for God, if you have to take a step of faith and go to the destiny God has for you, you have to learn to live differently. और अगर आप खुदा के लिए जीना चाहते हैं और आप विश्वास का कदम लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम वो विश्वास का एक कदम जिए ताकि हम अलग रूप से जिए। Romans chapter 12 verse 2 says, रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 12 का 2 कहता है, it says, do not copy the behaviors and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। We try to copy things that surrounds us. और हम उन चीजों की नकल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे चारों ओर है। We try to live that sort of a lifestyle that surrounds us. और हम वैसा जीवन हम जीना की नकल करते हैं जो हमारे चारों ओर है। But the Bible says, if you are going to walk with the Lord, you are not supposed to copy the patterns and customs of this world. लेकिन वचन कहता है कि अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो हम इस संसार की रीति के अनुसार नहीं चल सकते।
We are a citizen of heaven. हम उस स्वर्ग के नागरिक हैं, And because we are a citizen of heaven, the customs, the cultures, the traditions, and the pattern of the kingdom of heaven should be seen in us. और क्योंकि अगर हम उस स्वर्ग के नागरिक हैं तो वहीं की रीति, वहीं की सभ्यता हमारे चाल चलन में भी दिखे। Maybe you do not have to do big things that you think you should be doing for the Lord. हो सकता है शायद आपको बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें ना करनी पड़े जो Maybe you आपको may करनी not be preaching to thousands of people. पड़े। हो सकता है शायद आप कई हजारों लोगों को आप प्रचार नहीं कर। Maybe you may not be coming to this stage and singing some songs. हो सकता है शायद आप यहाँ मंच पे आके आप उसके लिए गीत ना गा पा रहे हैं। Maybe you may not be doing something on a big platform. हो सकता है शायद आप किसी बड़े मंच पर या स्तर पर आप उसके लिए नहीं कर पा रहे हैं। Maybe you will have to display that you are a follower of Jesus and a true believer to the world. लेकिन हो सकता है शायद आपको ये दर्शाना हो कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं और यीशु मसीह के एक सच्चे उसके अनुयायी हैं। Through the way you live, इस तरीके से जिस तरीके से आप जीते हैं by not compromising on your morality, कि अपनी नैतिकता के ऊपर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, by not compromising on your integrity. कि आप अपनी ईमानदारी के लिए कोई किसी भी चीज को आप Sometimes कॉम्प्रोमाइज it's ना so करना। easy to compromise on your integrity, on your morality, for the sake of your career growth, for promotions, for things of the world. और कभी कभी ये बहुत ही आसान होता है समझौता करना उन चीज़ों से, अपनी ईमानदारी से और नैतिकता से, सिर्फ अपने करियर के लिए या जॉब के लिए, नौकरी के लिए। But it is not compromising on these things irrespective of whatever comes our way. Pardon? Not compromising on these things. लेकिन इन सब चीज़ों में कोई समझौता नहीं, Because we are not buying by the traditions and customs of this world, but by the cultures and traditions of the kingdom of heaven. लेकिन हम सब इस संसार की रीति और सभ्यता से नहीं बंधे हुए, लेकिन उस स्वर्गीय सभ्यता और रीति से बंधे हुए हैं। It may be just a small thing of smiling and talking to somebody this afternoon. ये हो सकता है शायद एक छोटी सी बात हो कि हम मुस्कुरा कर हम किसी से बात करें। I realize that when we come to the church मैंने इस बात को जाना है, देखा है कि जब हम कलीसिया में आते हैं and we are searching for a parking space, और हम जब वाहन खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग की जगह ढूंढते हैं, cars and your bike, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, we get a lot of stress. हम बहुत ही तनाव में आ जाते हैं। But sometimes there Pradeep and his friends are smiling and welcoming us. लेकिन बहुत सी बार जो भाई प्रदीप हैं और उनके जो दोस्त हैं वो हमारा स्वागत करते हैं मुस्कुराते हुए। There is a Raju who is always smiling. और एक दूसरे भाई हैं जो राजू है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। That itself, it's a ministry. और ये अपने आप में एक सेविकाई, ये सेवा है। And that really conveys the love of Jesus. और ये वाकई में ये यीशु के प्रेम को दर्शाता Maybe है। you came to this church with so much wound in your heart and you might have been very upset because something happened in the traffic and you quarreled with someone and you are here in this church, but because someone smiled at you and welcomed you, you feel so blessed. और हो सकता है शायद आपके मन में कुछ घाव हो सकता है शायद ट्रैफिक में, जाम में आप बहुत ही परेशान हुए हो, आप खराब हुए हो, लेकिन कलीसिया में जब आप आते हैं और कोई आपका जब हंसकर मुस्कुरा कर स्वागत करता है, वो आपके लिए As काफी you होता है। enter into this door, some of you, they're welcoming you with a namaste, they're smiling at you, and that might have been such a blessing for you. और हो सकता है कि जब आप इस कलीसिया में आते हैं और दरवाजे में कोई खड़ा होता है हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है और मुस्कुरा कर आपका स्वागत करता है, हो सकता है ये आपके लिए एक आशीष हो। Maybe somebody just walked to you and said, brother, sister, how are you today? Can I pray for you? और या फिर कोई ऐसा कि कोई आपके पास कोई भाई या बहन आए और वो आपसे कहे कि भाई या बहन आप कैसे हैं, क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। That itself is such a wonderful achievement. ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। You see, there was a time in my life when I never wanted to talk with a lot of people. देखिए मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी रहा है कि जब मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, I never wanted to talk मैं बात नहीं करना चाहता था, and I would avoid people. मैं लोगों से दूर रहता था And they would rarely see me smile. और वो बहुत ही कम देख पाते थे कि मैं मुस्कुराता था। But the place where I am today, लेकिन जिस स्थान पर आज मैं हूँ, it's such that God brought me out of that life. ये ऐसा है कि खुदा मुझे उस जीवन से बाहर निकाल कर लाया था। I wanted to talk with everybody मैं हर किसी से बात करना and चाहता I हूँ, want to smile and talk.
मैं मुस्कुराकर मैं बात करना As चाहता a हूँ। pastor, when I'm not able to talk to you, you may feel bad. हो सकता है एक पासवान होने के नाते जब मैं आपसे बात ना कर पाता तो आप हो सकता है शायद दुख होते हो। Sometimes you may say, I will not go to Life Gate Church because pastor never talked to me. आप में से कुछ लोग भी ये कह भी सकते हैं कि मैं कभी भी लाइफ गेट कलीसिया नहीं जाऊंगा क्योंकि जो पासवान है वो मेरे से बात नहीं कर, And I see you only during Christmas time. और मैं सिर्फ आपको क्रिसमस के समय पर देखूं। But there are small little things in your walk with Jesus where you can perform and do amazing things through your character. और यीशु में चलने के साथ हम कुछ चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में दिखा सकते हैं। You can be forgiving. आप हो सकते हैं आप दूसरे को माफ करें, You can be a person who is known for your abundant love. और हो सकता है शायद एक आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जाने जाते हो अपने बहुतायत प्रेम की वजह से। There are people in our church, if you go and speak to them, just by speaking at them, your heart will start melting. हो सकता है इस कलीसिया में कोई ऐसे लोग हों जिनके पास आप जाते हैं और आप बोलते हैं, सिर्फ आपके उनके बोलने से आपका जो मन है वो खुश हो जाता हो। There is different ways by which the customs and patterns of the kingdom of God can be displayed through your act and your behavior. बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनके द्वारा हम दर्शा सकते हैं उस खुदा को के राज्य को। And in your walk with the Lord, you will have to learn to relearn many things. और उस खुदा की यात्रा में ऐसी चीजें हैं कि हमें चीजों को वापस सीखना पड़ता है। Or you may be a kind of a person just like Jacob. और हो सकता है शायद आप ऐसे व्यक्ति हो जो याकूब की तरह हो। You know who was Jacob? क्या आप जानते हैं याकूब कौन था? Jacob was one of the sons of Isaac. जो याकूब था वो इसहाक के बेटों में से एक बेटा था। He was a cheat. वो एक धोखेबाज था, He was a liar. वो झूठा था, And he was a schemer. वो एक चाल चलने वाला था। Such a person was he who took away the birthright of his elder brother. एक ऐसा जन जिसने अपने बड़े भाई के पहलूटे होने का हक ले लिया था, And because of such a life, he began to live his life in fear. और उसी जीवन की वजह से वो अपना जो जीवन है वो डर में जीता था। And then most of his life, he began to work to get Rachel. और अपने जीवन में बहुत सी बार उसने जो काम करे वो अमीर होने के लिए No, to get Rachel. सॉरी, ताकि वो रैचल को पा सके। And such a person was the life of Jacob. और इसी ऐसे ही जन का जो जीवन था वो याकूब का था। And maybe some of you are in that position today. और हो सकता है शायद हम में से कुछ लोग आज उसी स्थिति में हो। You feel yourself that you are a liar. आपको ऐसा महसूस होता हो कि मैं झूठा हूँ, Your word doesn't carry any weight. कि जो आपके वचन है, आपके जो शब्द है वो कोई भी मायने नहीं रखते। And then you feel yourself you are a cheat और आपको ऐसा महसूस होता हो कि मैं धोखेबाज हूँ, because you cheated a lot of people. क्योंकि आपने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। Maybe you begin to feel yourself you are a schemer. हो सकता है शायद आप अपने आप के लिए महसूस करते हो कि मैं तो चाल चलने वाला हूँ, And you begin to think, with all of this, how can I go before the Heavenly Father? और आप सोचते हो कि इन सब के बावजूद मैं खुदा के सामने कैसे जा सकता। And day and night, the devil is trying to tell you of who you are. और दिन और रात जो शैतान है वो आपको बोलता रहता है कि आप कौन हैं। But Jacob one day decided that I have lived enough of my life and I'm going to change. और एक दिन याकूब ने फैसला लिया कि मैंने अपना ऐसा जीवन बहुत जी लिया और अब मैं अपने जीवन को बदलना He चाहता was हूँ। afraid of living a life of fear. वो डरता था कि एक डरा वाला जीवन ना जिए। He was tired of living a life of being identified as a cheat. और वो थक गया था एक ऐसे जीवन को जीते हुए जहाँ पर उसको एक धोखेबाज के रूप One में day देखता हो। he decided to take his family members, his children, and go back to where he came from. और एक दिन फिर उसने अपने परिवार को और अपने बच्चों को साथ में लिया और वहां लौट गया जहां से वो आया था। He faced the realities. उसने वहां पर उस सच्चाई का सामना He करा। was afraid, वो डरा हुआ था, but he faced the realities. लेकिन उसने उस सच्चाई का सामना He किया। had to let go of things उसने चीजों को जाने दिया to be in the position of the destiny God had for him. कि वो उस स्थान में पहुंच सके, उस लक्ष्य में पहुंच सके जो खुदा का उसके
पास है। And as I said, some of you, to be in the destiny that God wants you to be, you have to let go of many things in your life. और जैसे कि मैंने कहा, आप में से बहुत से जन अगर आप उस लक्ष्य में जाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं जो खुदा का आपके लिए है, तो जरूरी है आपको बहुत सी चीजों को छोड़ना I have होगा। seen in the many years of my ministry how friends can destroy a person's spiritual life. मैंने अपनी सेविकाई में, इतने साल की सेविकाई में मैंने देखा कि किस प्रकार से जो दोस्ती है वो किसी व्यक्ति के जीवन को खराब कर It's सकती है। like tying chains to your leg. ये कुछ ऐसा है कि मानो जैसे पैरों में जंजीरें जकड़ी हुई हो, Not move ahead. आप आगे नहीं बढ़ पाते, Because every time you try to move ahead, you are not letting go of the past and of your companions. और जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपने अतीत को नहीं जाने दे रहे हैं, और जो आपका साथी है आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। Some of you have to change your ideology. आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपनी मानसिकता, अपने जो ज्ञान है उसको बदलना हो। I would even say some of you who has been going to some churches, maybe you have to change even the church you used to go to. और हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग जो अगर पहले किसी कलीसिया में जाते थे तो आपको शायद वो भी छोड़ना हो। Maybe you go to a church because your parents have been going to the church. हो सकता है शायद आप कलीसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके माता पिता जाते हैं, Because your grandparents have been going to the church. क्योंकि आपके जो दादा या दादी हैं वो वहां पर जाते You हैं। go to the church because you feel if I leave this church, then my family members will feel bad. और शायद आपको ऐसा महसूस हो कि ओ अगर मैंने कलीसिया को छोड़ दिया तो जो मेरे परिवार के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। There is no spiritual learning. लेकिन वहां पर कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं You है, feel so dumb spiritually. वहां पर आप बहुत ही मूर्ख होने लगे There is no spiritual growth in you. आप में कोई भी आध्यात्मिक There is खराब no नहीं है, daring in you. आप में कोई हिम्मत हियाब नहीं आती। And so many times there are things we have to let go. सो बहुत सी बार ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हमें जाने देना होता As I है। come to the end, I would like to remind you the book of Genesis chapter 12 verse 1. और जैसे मैं अंत की ओर आ गया हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 12 से। The Lord said to Abraham, leave your native country, your relatives, your father's household, and go to the land that I will show you. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। But apart from that, God never said anything to Abraham. लेकिन उसके अलावा खुदा ने कभी भी अब्राम से कुछ ना कहा। He only mentioned the first step. उसने सिर्फ पहले कदम के बारे में What बताया। is going to be the second step? दूसरा कदम क्या होगा? What will happen after he takes the first step? क्या होगा अगर उसने पहला कदम लिया तो? He had to leave many of his family members behind उसको अपने बहुत से परिवार के लोगों को पीछे छोड़ना था, because his family members were not believers. क्योंकि हो सकता है शायद जो उसके परिवार वाले हों वो विश्वासी ना, They were idol worshippers. वो मूर्ति पूजक हों, They were not people who honor the Lord. वो ऐसे लोग ना हों जो खुदा का सम्मान करते हों। Maybe in your spiritual walk with the Lord, हो सकता है शायद आपके इस आध्यात्मिक जीवन में खुदा के साथ you have to leave behind your emotional attachment to your family. हो सकता है शायद आपकी जो एक भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं परिवार के साथ शायद वो भी छोड़नी। Maybe with your friends, हो सकता है शायद अपने दोस्तों के साथ, because your principles become different. क्योंकि जो आपके सिद्धांत हैं वो दूसरे हो गए हैं, Your understanding becomes different. क्योंकि जो आपकी समझ है वो बदल गई Your है, priority changes. आपकी जो प्राथमिकता है वो बदल गई है। What you honor is not the same thing that they honor. जिस बात का आप सम्मान करते हैं वो बात नहीं जिसका वो भी सम्मान करते हैं। And maybe you have to come out of your comfortable life. और क्योंकि आप अपने आरामदायक जीवन से आए हैं, Maybe most of you this afternoon are going through a life of struggles and challenges. हो सकता है इस समय भी बहुत से लोग हो इस कलीसिया में जो अपने जीवन के Because बहुत, God is shaking your nest. क्योंकि जो खुदा है वो आपके घोंसले को हिला रहा है। Yesterday, Molly was sharing about how a mother eaglet, a mother eagle would shake the nest of the eaglets. और कल जो श्री स्मॉली है, कल वो इस बात का साझा कर रही थी कि किस तरीके से जो एक मादा जो बाज है वो उस घोंसले को वो हिलाती है, डुलाती है, In order for the eaglets to start flying, इसलिए कि वो जो बाज के बच्चे हैं वो उड़ना सीखें। they would sometimes take the eaglets and throw it from the height of the mountain. जो मादा जो बाज है वो उन बच्चों को पर्वत की ऊंचाइयों से यहाँ से छोड़ They would देती है। sometimes shake the nest. कभी कभी वो
समय आता है कि वो घोंसले को पूरा झंझोड़ देते हैं their comfort, और वो उसके आराम को वो खराब so कर देता that है, they will feel uncomfortable and leave the nest. ताकि वो वहां पर आरामदायक महसूस ना करें और ये उस घोंसले को Every छोड़ one दें। of you are going through a period in a season of uncomfortableness. अगर आपके हम में से कोई भी जन है जो इस समय ऐसे समय से गुजर रहा हो जहाँ पर वो आराम में ना हो, Maybe God wants to tell you it is time that you need to go ahead in your life. हो सकता है शायद वो समय ये हो जहाँ पर खुदा कहना चाहता हो कि ये वो समय है कि तू अपने उस आरामदायक स्थिति को छोड़ और आगे बढ़। Time to change your friends. कि समय आ गया है अपने दोस्त बदलने का। Time to let go of those understanding you have hold on to many years. समय आ गया है उस समझ को छोड़ने का जो तूने कई सालों तक थामी हुई थी। Maybe for most of you, even time to move on. हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का शायद ये समय हो कि आप आगे बढ़ें। And I hope and pray that this afternoon as you listen to this sermon, और मैं उम्मीद रखता हूँ और आशा रखता हूँ कि जब आप इस संदेश को सुने, that in order to move ahead in life, you need to take risk. कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, But in Jesus, लेकिन यीशु में all risks are covered. जो भी रिस्क है वो सब ढांपे गए हैं। Hallelujah. आमीन। That is the beautiful thing of living in Jesus. और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जब हम यीशु में जीते हैं तो, That no matter what, you're always covered. कि फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा ढांपे गए हैं।